اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دوم ہماری زباں کی ہے۔ ناظرین السلام علیکم، ایک نیا دن اور ایک نیا پروگرام لے کر میں سعید عرفان نبی آپ کی خدمت میں حاضر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم مختلف موضوعات پر بین الاقوامی، قومی اور ریاستی سطح پر مباحثوں کا اہتمام کرتے ہی رہتے ہیں۔ آج بھی ہم نے ایک مباحثے کا اہتمام کیا ہے۔ آج ہمارا جو مباحثہ اس میں خاص مہمان جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ ہے محترم احمد برقی اعظمی صاحب، ہمارے ساتھ ہردل عزیز محترم پرتپال سنگھ بیتاب صاحب جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر محی الدین زور کشمیری صاحب جڑے ہوئے ہیں۔ اور آج جس موضوع پہ آپ حضرات بحث کریں گے، موضوع بحث ہیں معاصر ادبی رویے۔ چلیے سب سے پہلے آپ میں تینوں مہمانوں کا دل کی گہرائی سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں محترم زور کشمیری صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ زور صاحب جی، یہ جو رویے ہیں عوام اس وقت ابھی جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں یہ اس سے پورے واقف نہیں ہے، یہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر ہمارے جو نوجوان لکھنے والوں کے لیے آپ اختصاراً چند کلمات فرمائیں رویے کے متعلق۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو کچھ فرمانے کے لیے، کچھ اپنے دل کا حال بیان کرنے کے لیے موقع دیا ہے۔ تو جہاں تک کہ رویے کا تعلق ہے، ایکچولی بات یہ ہے کہ جب کوئی لکھنا شروع کرتا ہے یا کوئی سفر کرنا شروع کرتا ہے تو جو سفر ہوتا ہے یہ خود اس شخص کو، مسافر کو سمجھاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کیسے چلنا ہے۔ اب جب ادب کی بات ہم کریں گے، ادب میں رویہ یہی چیز ہے کہ جب ایک ادیب یا ایک قلمکار یا ایک لکھنے والا اپنا سفر شروع کرتا ہے، وہ اپنے حالات کا جس پر اس کو لکھنا ہے، اور جیسے جو ان کے جو محاصرین ہوتے ہیں، جو اس کے ہمسر ہوتے ہیں، جو اس دور لکھنے والے ہوتے ہیں، یا ان سے پہلے جو لٹریچر لکھا گیا ہے، ان راہوں کو وہ خود بخود متعین کرتا ہے، ان راہوں کو وہ چنتا ہے۔ میرے نزدیک ادبی رویہ اسی چیز کا نام ہے کہ وہ اپنے ماحول سے، اپنے جو اس دور کے جو لکھنے والے ہیں، اس دور کی جو ٹیکنیکس ہیں، اس دور کے جو موضوعات ہیں، اور پھر اپنے حساب سے وہ اپنے انداز سے وہ ان کا ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ، ان ٹیکنیکس کو وہ کیسے برتتا ہے، وہ اپنے کیسے ان ٹیکنیکس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے، اپنی اس کے پاس کتنی صلاحیتیں ہوتی ہے، ان صلاحیتوں کو وہ کیسے بروئی کر لاتا ہے، یہ چیز جو ہے ادب میں رویہ کہلاتا ہے۔ جی میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا۔ ہمارے ساتھ محترم برقی اعظمی صاحب جڑے ہوئے ہیں۔ برقی صاحب، ایسے کون سے رویے ہیں، ایسے کون سے ٹرینڈز ہیں جو معاصر میں اس وقت، جس پہ اس وقت تخلیق کار لکھ رہے ہیں؟ تو آپ سے میں کمنٹ لینا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں بتا دوں آپ کے میرے بڑے نوینا مراسم سے، وہ میرے سینئر سے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں، وہیں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور وہ اردو میں تھے اور میں نے فارسی میں جو ہے پی ایچ ڈی کی، اور ہم لوگ وہیں گنگا ہاسٹل میں رہا کرتے تھے، اور وہاں ادبی نشست سے برخاست ہوا کرتی تھی۔ اس میں طاہر خیامی صاحب بھی جو ہے مرحوم، وہ بھی آیا کرتے تھے جو ہے، اور ہم لوگ بہت قریب سے ہم نوالا ہم پیارا سے۔ اتفاق سے آج ہی جو ہے فیس بک پر میری نظر پڑی، اور تو میں نے دیکھا تو میں بڑا خوش ہوا کہ ان سے جڑوں گا جو ہے، لیکن وہاں جب اس کے ٹیکسٹ کو دیکھا تو یہ جا کر خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ بہرحال وہ ایک پرگو شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، لیکن میں بحیثیت فکشن نگار ان کو اس وقت نہیں جانتا تھا، اور یہاں ادبی نشستیں ہوا کرتی تھی جس میں ہم لوگ شریک ہوا کرتے تھے۔ وہ ہفتہ وار اور ریڈیو سے نشر دیا کرتے تھے، میرا تعلق ریڈیو سے ہے۔ بہرحال جو ہے ادبی رویے آج کل جو ہے ان میں اصلی حیثیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہی ادب کا صحیح معنی میں جو ہے ادب ہے جو اصلی حیثیت کی اور اپنے عہد کی عکاسی کرتا ہے، اور ان کے اظہار بیان میں بھی ندرت تھی، اور ان کی تحریروں میں بھی جو ہے جدت تھی، اور اس سلسلے میں جو ہے فی البدی میں عام طور سے منظوم تاثرات کرتا ہوں، اور میرے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا، کچھ گیسٹ بھی آ گئے تھے، تو چند شعر میں نے جو ہے لکھ کے
अजहर ताजिद के तौर पर मैं पेश करना चाहूंगा। थे मेरे हमदमे दरीना जो जीएम आजिर, थे मेरे हमदमे दरीना जो जीएम आजिर, हो गए हैफ वो इस दारे फना से रुखसत, हो गए हैफ वो इस दारे फना से रुखसत। फेसबुक पर नजर आई मुझे उनकी तस्वीर, फेसबुक पर नजर आई मुझे उनकी तस्वीर, हो गई देख के तारी जिसे मुझ पर रिक्कत, हो गई देख के तारी जिसे मुझ पर रिक्कत। देख कर हो गई ताजा वो पुरानी यादें, देख कर हो गई ताजा वो पुरानी यादें। उनको जेएनयू में हद दर्जा थी मुझसे उल्फत, उनको जेएनयू में हद दर्जा थी मुझसे उल्फत। ताज़ियत कैसे करूं गुम ज़ुबां है मेरी, ताज़ियत कैसे करूं गुम ज़ुबां है मेरी। आज एक सदमे जाका है उनकी रहलत, आज एक सदमे जाका है उनकी रहलत। वो सुनाते थे मुझे शौक से अपने अशार, वो सुनाते थे मुझे शौक से अपने अशार। उनके उसलूब बयां में थी निहायत जिद्दत, उनके उसलूब बयां में थी निहायत जिद्दत। थे मेरे हमदमे दरीना जो जीएम आजिर, हो गए है वो इस दारे फना से रुखसत। तो ये तफसीलात में बयान करना चाह रहा था, और मेरे लिए वाकई बहुत शॉकिंग है ये लम्हा जो है। और उसके बाद से मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रहा उनका, जो है टेलीफोन से रखता था। तो इस सर वजह से बहरहाल जो है सर मैं आपसे जी, और शायद आपने मेरा सवाल पूरा नहीं सुना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो इस वक्त जो मास्टर है इसमें कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं जिसमें कलमकार लिख रहे हैं, तो इस हवाले से आपसे एक सर जानना चाहते हैं। कलमकार आज के जो है जो मौजूदा हालात हैं, गर्दिश हालात है, उनकी अक्कासी कर रहे हैं। और इधर जो असली अदब है उसमें कोरोना का जिक्र आ रहा है, तरफ जो जो तमाम आलम उससे मुतासिर है। तो जो अदबी रवैये हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है, और आज का असली अदब उसी का आईनादार है जो है। और हर तरीके से कभी जो है वो नज़रत निस्मा का जिक्र है, आमतौर नसाई अदब कभी कोई परवान चल रहा है। और आप लोग जो है इस किस्म के जो है मुख्तलिफ जो है जो हालात हैं जिनसे दो चार है लोग जो है, आमतौर से उन्हीं की अक्कासी हो रही है अदब के अंदर जो है। जी ये मतलब जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ मोहतरम प्रितपाल सिंह बेताब साहब जुड़े हुए हैं। बेताब साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम भी। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इस्तिफादा करना चाहते हैं इस वक्त शायरी के हवाले से जो डिस्कोर्स है कश्मीर में या उर्दू में, आप तो वाकिफ हैं, क्या लग रहा है आपको जो इस वक्त जो नए लिखने वाले हैं उनके कलम में वो ताकत है जो पुराने लिखने वालों में है, या अभी वो बुखारात ही पेश कर रहे हैं? देखिए फरहान साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है क्लियर। हमारे यहाँ उर्दू अदब में ये तकरीबन जो भी लोग नए लोग भी आते हैं या जो लिख रहे हैं, उन सबको ये एहसास रहता है, मालूम होता है कि उर्दू अदब में ही नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी तक जो अदब था पिछले तकरीबन 70-80 साल से, उसमें तरक्की पसंद तहरीक पहले एक एजेंडा के मुताबिक चलती रही काफी देर तक, एक मखसूस एजेंडा के मुताबिक। फिर उसके बाद जदीदियत की तहरीक जो किसी हद तक तरक्की पसंद तहरीक की जिद में थी और किसी हद तक वो तरक्की पसंद तहरीक की तोसी में भी थी। फिर एक जमाना आया कि ये ऐलान किए गए कि अब जदीदियत का दौर भी खत्म हो चुका है, जो 20वीं सदी की 9वीं दहाई से क्या माबैद जदीदियत का दौर आ गया। इसके बारे में तफसीलात भी दी गई अपने अपने कैंपों से, अपने अपने जो गुट थे, जो ग्रुप थे उनकी तरफ से। तो जो भी शायर अदीब जो लिखता है उसको एक तो ये एहसास रहता है कि उर्दू अदब में या कश्मीरी अदब में भी किसी जमाने में तहरीक तरक्की पसंद
अदब का भी जोर रहा या उसका चलन रहा या उसका रवैया रहा, वो एक रवैया भी बन गया। किसी हद तक एक जमाने में जदीदियत का रवैया भी रहा और फिर माबैद जदीदियत का रवैया भी रहा। तो जो भी आदमी लिखता है, जो आज का नया आदमी भी अगर नया नौजवान भी है कोई, तो उसके अंदर इन तहारीक का एक तो एहसास रहता है, किसी न किसी कोने में, किसी न किसी गोशे में उनके अंदर ये इन चीजों के असरात जो हैं वो जिंदा रहते हैं। और फिर उसके अलावा जो आपके इलाकाई मामलात हैं, जैसे पिछले दिनों मैंने आपके हवाले से कश्मीर के एक दो नौजवानों का कलाम देखा जो एहतजाजी किस्म का कलाम था, जिसे हम एहतजाजी कलाम कह सकते हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि कश्मीर के जो पिछले 20-30 साल के हालात हैं, उनकी अक्कासी भी कश्मीर के कुछ नए जो नौजवान लिखने वाले शायर हैं उनके यहाँ आ रही है। तो मजबूरी तौर पे मैं ये आपसे कहूँ कि मुझे शाहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ रहा है कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं। वो कहते हैं कि जो कुछ भी, हकीकत ये है कि जो कुछ भी खारजी असरात के तहत हमारे अंदर आता है, जो हालात होते हैं, जो मामलात होते हैं, जो खारजी, वो हमारे अंदर दाखिल होते रहते हैं और फिर दाखिल हो के किसी हद तक लाशूरी सतह पे तो किसी हद तक शौरी सतह पे वो अदब की सूरत में या शायरी की सूरत में। आप देखिए ये जो जिसको हम असली हैसियत कहते हैं, असली हैसियत भी क्या है? असली हैसियत यही है कि जो हमारे सामने हो रहा है, जो कुछ अच्छा या बुरा हमारे सामने हो रहा है, उसके असरात हमारे अंदर दाखिल होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। और अगर हम शायर हैं या अदीब हैं तो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तौर वही चीजें जो हैं वो हमारे बाहर आती है शायरी की सूरत में, कभी अब देखिए मैं 2 मिनट लूंगा अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई कि आप देखिए गालिब के यहाँ इन्होंने फारसी की बात की, तो गालिब के यहाँ एक शेर है गालिब का कि बवादिये के दरा फिजर रहा असा खुफ्तस बसीना मी सिपरम रहा गरचे पा खुफ्तस। आप आज की कश्मीर वादी का अगर एक तरह से उसका तस्वर करें तो ऐसे लगता है कि गालिब कह रहा है कि एक ऐसी वादी में जिसमें खिजर का जो असा है, छोटा है, डंडा है, वो भी जो है वो गुम हो गया है। तो मैं उस वादी में सीने के बल चल के रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तो हम इसको आज असली हैसियत कह सकते हैं। गालिब ने उस जमाने में महसूस किया, किस वजह से किया? कुछ हालात हो सकता है 1857 के हालात रहे हों या कुछ ऐसे हालात रहे होंगे कि जो उसके लिए उस वक्त असली हैसियत थी, लेकिन हमारे लिए आज वो असली हैसियत है कश्मीर वैली में। तो अदब जो है शायरी खास तौर से उसकी एक आफाकी हैसियत होती है। अगर सच्ची शायरी फारसी में आपने ज्यादा, मैं शेर सुनाना नहीं चाहता, इतना वक्त नहीं है, वरना फारसी में जो हमारे उस्ताद हुए हाफिज और साहिब तबरेजी वगैरह, इनके यहाँ ऐसे ऐसे शेर हैं जो आज हम अगर वो शेर पढ़ें तो हमें लगता है कि हमारे आज के मुआशरे की असली हैसियत इन शेरों में शामिल है। जी मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। जोर साहब का एक बड़ा नाम है कश्मीर में इस वक्त, क्योंकि जोर साहब भी वाहिद ऐसी शख्सियत है कश्मीर में जिन्होंने 2 दर्जन से ज़ायद किताबें इस वक्त लिखी है और जो इस वक्त एक उर्दू अदब को उससे फ़ायदा नसीब हुआ और इस्तिफ़ादा करते हैं लोग उन किताबों से जो जोर साहब के कलम से निकली हुई है। जोर साहब, क्योंकि आप नसर के कलमकार हैं, नसर लिखते हैं, नसर में आपको क्या लग रहा है इस वक्त जो कौन सी ट्रेंड्स चल रही है? जहाँ तक कि नसर की बात है,
सहाफत या नॉन फिक्शन को अलग छोड़ के पहले हम, ये बहुत बड़ा शोबा है, बहुत बड़ा फील्ड है, तो हम फिक्शन के हवाले से बात करेंगे। जहां तक अफसानों और नावलों का ताल्लुक है, तो ये एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें हम जो है अपने पूरे हालात, अपना माहौल या जहां हम रहते हैं उस जमीन की हम पूरी तरह से जो है अक्कासी कर सकते हैं इसमें फिक्शन में। और जैसे कि आजकल के जो फिक्शन राइटर्स हैं, नावल निगार हैं या अफसाना निगार, बहुत सारा ऐसा करते हैं। अब एक बहुत सारी बातों को हमें यहाँ ख्याल में रखना है। पहले हमें जो है इसमें आज़ादी इजहार हो। अगर हम फिक्शन की बात करेंगे तो आज़ादी इजहार किस हद तक है, ये भी हमारे एक फनकार के लिए एक चैलेंज है। अब उसके बाद अगर आज़ादी है, दूसरी बात आज़ादी के साथ यह है कि फिक्शन निगार या हमारा जो कलमकार है, नसर निगार जो है, वो किस हद तक ईमानदारी के साथ काम करता है। अब हम थोड़ा सा मसला तो आज का है, मगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे। अगर आप 47 में जो हालात पैदा हुए उनके लिटरेचर की बात करेंगे, एक साइड या खुदा लिखा गया, एक साइड और इंसान मर गया, यानी दो कॉन्ट्राडिक्शन है। वो एक साइड की बात करता है, ये भी अपने साइड की बात करता है, मगर यहाँ ईमानदारी की बात नहीं है। तो एक फिक्शन निगार को ईमानदारी के साथ जो भी हालात है इस वक्त बरसगीर में या वर्ल्ड में जो हालात है, एक हमारे कलमकार को ये है कि उसको ईमानदारी का साथ देना है और बात जो है खुलकर करनी चाहिए। अब साथ में जो जहां तक कि टेक्निक्स की बात है, अब आजादी है, इंसान लिखना चाहता है, इंसान लिख सकता है, मगर यहाँ कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ फनकार वो टेक्निक्स के उसूल में बंद रहते हैं। उसके बाद उसके साथ क्या होता है कि वो टेक्निक तो अपनाते हैं, मगर उस हद तक वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं फिक्शन में या किसी और फील्ड में। तो इस चीज को यहाँ आजादी, उन्हें एक तो मौजू की आजादी लेनी चाहिए, दूसरी बात यह है कि उन्हें टेक्निक्स की भी कुछ आजादी लेनी चाहिए। मैं एक बात अर्ज करूं, जब शेक्सपियर की हम बात करेंगे, शेक्सपियर के जमाने तक ड्रामा में जो उसूल होते थे वो एरिस्टोटल के दिए हुए थे, मगर शेक्सपियर ने अपने जमाने में उन टेक्निक से, उन उसूलों से इन्हिराफ किया है। इसी तरह हमारे अफसाना निगार को इन्हिराफ करना चाहिए और हमारे अफसाना निगार करते हैं। मैं अपने कुछ अफसानों की बात करूंगा। पिछले साल जो यहाँ हालात पैदा हुए, इसके बाद मेरी 2016 में जो 93 से 1993 से लेके 2015 तक जो मैंने अफसाने लिखे हैं, उनको आने दो तूफान के नाम से मैंने शाया किया है। उनमें वो कुछ मौजू अलग था। तो उसके बाद मैंने कुछ और अफसाने लिखे। उसके बाद 2019 में मैंने नए सिरे से अफसाने लिखनी शुरू किए। उसमें क्या था, जो हालात थे, मगर मैं चाहता था कि मेरे अफसाने सिर्फ इस दौर की अक्कासी ना करें, कुछ पास्ट की जो हमने खोया है, 90 से पहले जो हमने खोया है उसका भी कुछ जिक्र हो। जो हमारी शिनाख्त है, जो हमारा कल्चर है, जिसको 90 के बाद हमने खोया है, और जो इस वक्त हालात है, एक कारी जो है दोनों चीजें एक साथ मवाजना करे एक मेरे अफसाने में। तो उसके लिए क्या है कि मुझे नई टेक्निक इसको ईजाद करना पड़ा। तो मेरे जो अफसाने वापस जाते हैं फ्लैशबैक में, यानी 2019 में मेरा किरदार हालात का सामना कर रहा है, मगर वही किरदार जो है अपने बाप को देखता है या अपनी सोसाइटी को देखता है जो 80s में या 85 या 87 की बात है। यहाँ इन हालात में अगर आप यहाँ आज की बात पेश कर रहे हैं, तो आपको दोनों चीजों से, फन से भी इन्हिराफ करना पड़ेगा, टेक्निक्स को भी उसमें भी थोड़ा सा वो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो है मौजू के साथ पूरा इंसाफ करना पड़ेगा। अब आजकल के अफसाने की बात मैं करूँ एक मिनट। तो अब बशीर मालियर कोटली भी एक अफसाना निगार है। उन्होंने ऐसे अफसाने लिखे जो आज के दौर के ही नहीं, जो एडवांस फ्रॉम हिज टाइम, यानी आज के दौर से वो एडवांस है। वो 2030 में क्या हो रहा है, 2040 में क्या होने वाला है, ऐसा उसका विजन है, ऐसा हमारा अफसाना है। अब आप नावल की बात करें, शबनम लमस के बाद मनाजिर आशिक हरगानवी का रीसेंट नावल पब्लिश हुआ। उसमें एपिस्टोलरी नावल जिसको हम कहेंगे मकतूबाती, उन्होंने खतूत में एक नावल लिखा है, उनका प्लॉट दिया है, और यहाँ बहुत सारी टेक्निक्स आपको मिलेंगे। इसी तरह जामिन अली का नावल, वो बैन मतूनियत की बात करता है, इंटरटेक्सटिविटी। मुंशी प्रेमचंद ने क्या कहा, उनके ख्यालात की क्या रेलेवेंस है, क्या उनके ख्यालात को, उनके कैरेक्टर्स को, उनके मौजूआत को हम और आपके आज के जमाने के साथ रेलेवेंट करेंगे। तो इसलिए उन्होंने उन किरदारों को जिंदा करके उन पर नावल लिखा है जामिन अली ने। इसी तरह अनीस अशफाक की हम बात करेंगे, आज की बात ख्वाब सराब,
उनका नावल है उमराव जान अदा का उन्होंने जिंदा किया, जिंदा करने के बाद उन्होंने उमराव जान अदा के नए नए परत खुले हैं, उन्होंने लखनवी कल्चर को नए सिरे से पेश किया है। मैं अनीस अशफाक लखनऊ की बात कर रहा हूँ। या अनारकली के बारे में नावल लिखा गया है हामिद बेग साहब पाकिस्तान ने, ये रिसेंट नावलों की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह शमसरामा फारूक की पूरी हिस्ट्री को खंगाला है, कहीं छानते सरे आसमान। तो ये चीज भी है आज के दौर में। आप तारीख की बात, अपने तहजीब की, अपने कल्चर की, अपने पास्ट की भी बात कर सकते हैं, और लोग करते हैं आज का नावल निगर, आज का फिक्शन निगर, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज अच्छी है, टेक्नोलॉजी जो भी है बहुत सारा अच्छा है, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें अपने तहजीब के साथ, हमें अपने सोसाइटी के साथ रेलेवेंट बना दिया। मैं आपके पास फिर आऊंगा बरकी साहब। जी मैं आपके पास मैं एक मिनट में मैं अपनी बात करूंगा। 30 सेकंड में जैसे इशारा किया गया है कि फेमिनिज्म की बात चल रही है, आलमी हालात की बात चल रही है, तो मनाजिर साहब की आप बात फिर करेंगे। मनाजिर साहब ने 4-5 किताबें कोरोना पर एडिट करवाई है, यानी लोग लिख रहे हैं कोरोना मतलब रिसेंट जो हो रहा है। हमारा उर्दू अदब उतना पीछे नहीं है कि जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। हमारा अदब, हिंदुस्तानी अदब आलमी अदब के बराबर चल रहा है। हमारा फिक्शन, हमारे सारे असनाफ वर्ल्ड लेवल पर काम कर रहे हैं। असली मौजूद हमारा राइटर, हमारा तहलीकार, हमारा फनकार ताजा है, तरोताजा हालात के साथ जुड़ा है, जुड़ा हुआ है। जी हाँ बरकी साहब आपका डॉक्टर जोर साहब की बात से इत्तेफाक है या आप इख्तिलाफ रखते हैं इनकी? मैं इससे मुत्तफिक हूँ। हर दौर का अदब जो है अपने हालात उसके मुतकादी होते हैं, अपने हालात का अक्कास होता है, और जो इन्होंने कहा मैं उससे मुख्तलिफ हूँ। और आज सिर्फ अदब में तहजीब, सकाफत, समाजी हालात और उसके अलावा जो है माहौलियात का भी बहुत हद तक जो है जिक्र हुआ है। आमतौर से जैसे ओजोन होल का तस्वुर है, ग्लोबल वार्मिंग का तस्वुर है, इस तरफ लोगों ने तवज्जो कम दी है। लेकिन मेरा खास मौजूद रहा है, मैंने जो है मंजूम तासरात ओजोन होल पर भी लिखे हैं, ग्लोबल वार्मिंग पर लिखे हैं, और जो जिससे तमाम आलम मुतासिर होता है। मैं चाहूंगा कि जो है अगर आपको इजाजत दे तो मैं इस सिलसिले में एक रंग सुनाऊं ग्लोबल वार्मिंग पर। जी आपसे नजर सुनेंगे सर। जी आपसे नजर सुनेंगे सर, हम आपसे बिल्कुल हम महजूज होंगे इंशाल्लाह। मैं सर पहले डॉक्टर जोर साहब आपने जो फरमाया, जो साइंस फिक्शन अभी हमारे यहाँ मुतारिफ नहीं हुआ है उर्दू में, तो कब होगा मुतारिफ? साइंस फिक्शन कब मुतारिफ होगा हमारे यहाँ? साइंस फिक्शन पर काम भी हो रहा है। आप उर्दू एकेडमी की किताबें पढ़िए, इजहार असर, शायद इजहार असर, मैं बहुत काम किया है, बहुत काम किया है तकनीक के एतबार से भी और तनकीद के एतबार से। इसके बाद जोर साहब इस हवाले से आपसे बात करेंगे, इस हवाले से आपसे बात करेंगे जोर साहब। आप हाँ जोर साहब इस हवाले से आपसे बात करेंगे। हमारे साथ मोहतरम प्रितपाल सिंह बेताब साहब जुड़े हुए हैं। प्रितपाल सिंह बेताब साहब, क्योंकि जब हमने एडवर्टीजमेंट की कि प्रितपाल सिंह बेताब साहब आ रहे हैं हमारे शो में, तो बहुत सारे आपके मुहिब है, इस्तिफादा करना चाहते हैं आपसे। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए कि सर से पूछिए। एक साहब हैं जाफर जमील मीर साहब, तो वो पूछना चाहते हैं आपसे, इस्तिफादा करना चाहते हैं कि क्लासिकी और जो जदीद शायरी है क्या फ़र्क है इसमें? देखिए ऐसा है कि मैंने जो पहले आपको गालिब का शेर सुनाया, मैं एक और गालिब का शेर सुनाऊंगा आपको उर्दू का, कि रो में है रक्षे उम्र कहाँ देखिए थमे, न हाथ बाग पे है न पा है रिकाब में। लेकिन सर रो में है रक्षे उम्र जी कहाँ देखिए थमे, न हाथ बाग पे है न पा है रिकाब में। बिल्कुल। आज जो जदीद शायरी हो रही है, अगर हम गालिब को इस शेर को बगैर गालिब के नाम के जदीद शोरा की शायरी में शामिल कर दें, रख दें कहीं, तो जिसको ये मालूम नहीं होगा कि ये गालिब का शेर है, वो कहेगा कि ये किसी जदीद या माबाद जदीद शायर का शेर है। बिल्कुल। तो शायरी में मैं कुछ लोगों से, मैं किसी खास आदमी का नाम नहीं लेना चाहता,
कुछ लोगों से मैं इख्तलाफ करता हूँ। शायरी जो है, शेर जिसको हम कहते हैं, कविता, काव्य, उसके अंदर इशारा, किनाया, अलामत, इस्तिआरा, बिल्कुल अलामत, इस्तिआरे, इशारे, किनारे के जरिए बात की जाती है। किसी एजेंडा या किसी मखसूस मौजू के एतबार से शायरी नहीं होती है। शायर जो है वो तो ऐसे फकीर होता है, मौलाना रूमी, हाफिज, संत कबीर, गुरु नानक। शायर तो कहते हैं ना कि शायरी जुज़्वे पैगम्बरी है। जी शायर जो है उसके यहाँ, जैसे शायर का शेर मैंने आपको सुनाया कि बाहर की चीजें, खारिज की चीजें अंदर जमा होती रहती हैं और लाशऊर के अंदर जमा होती रहती हैं, फिर किसी वक्त वो लाशऊर से तहतुल शऊर में और फिर शऊर में आती हैं, तो उनका इजहार होता है सफरे किरतास पे, तो हम उसकी सिर्फ और सिर्फ नोक पर संवारते हैं। बिल्कुल वरना गुरु नानक ने कहा था, गुरु नानक देव ने, कि जैसी में आवे खसम की बानी, फैसला करी ज्ञान में लालो। अपने एक दोस्त थे उनके, लालो, उनसे कहा कि जैसी मुझे अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से वाणी, आवाज आती है, वैसा ही मैं ज्ञान जो है वो आप लोगों के लिए आगे करता हूं। तो शायरी जो है, ये यकीनी सही बात है कि आदमी के अंदर जो कुछ भी दाखिल हो रहा है वो खारिज से हो रहा है और असली हिस्सियत उसमें जरूर शामिल होती है। लेकिन शेर आएगा अलामत के जरिए, इस्तिआरे के जरिए, किनारे के जरिए, इशारे के जरिए। शेर जो है वो कभी किसी खास पार्टी के एजेंडा या किसी मौजू के एजेंडा या किसी खास किस्म की असली हिस्सियत के एजेंडा के तहत नहीं आएगा। किसी जमाने में किसी शायर ने, शायद हाफिज ने कहा था कि याराने ई जमाना माने मिसले गुले अनारंद, याराने ई जमाना मिसले गुले अनारंद, रंगे अजीब दारन, बुए वफा न दारन। आज के जमाने के जो दोस्त हैं उनका ऐसे है सिलसिला जैसे अनार के फूल होते हैं कि रंग तो बड़े खूबसूरत है उनके, लेकिन खुशबू वफा की नहीं होती। आप देखिए ये शेर कब कहा होगा, 200 साल 300 साल पहले, लेकिन आज के दौर में अगर कोई जदीद शायर उर्दू में यही शेर, हम कहेंगे ये जदीद तरीन शेर है। तो शायरी जो है उसकी एक आफाकी हैसियत है, वो टाइम से परे है, वक्त से परे है, मुकाम से परे है। शायरी तो एहसास से भी परे है। क्या पता कब कहां से कोई चिड़िया, कोई तितली आके आपके कोट के कॉलर पे बैठ जाती है, पता नहीं कब कोई रंग बिरंगी चिड़िया आपकी आंखों के सामने से गुजर जाती है, तो आपके अंदर से बात निकलती है जिसको हम शेर कहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं आपके पास आऊंगा। जी सर। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि शायरी में असली हैसियत नहीं आती, असली हैसियत मौजूद होती है। हमने जदीदियत के जमाने में भी शेर कहे, हमने माबाद जदीदियत के जमाने में भी शेर कहे, और आज जो नौजवान जो नए शेर कह रहे हैं माबाद जदीदियत के जमाने में, उस जमाने में भी हमने शेर कहा। लेकिन हमारे यहाँ एक तरह की हिस्सियत जदीदियत के जमाने में भी थी, जी जी। उसे असली हिस्सियत कह सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि वो जो हमने शुरू किया था वो असली हिस्सियत और नई हिस्सियत का एक इम्तिजाज था। तो मैं ये कहूंगा कि हर जमाने में जो नया शायर मैदान अमल में आएगा, मैदान शेर में आएगा, उसके यहाँ असली हिस्सियत और नई हिस्सियत, नई हिस्सियत को आप जदीद हिस्सियत
या जी सर, जदीद जी तरीन हैसियत जी कहें, जी सर, इनका जी इम्तजाज होना जी चाहिए सर, और होता है। जी सर। डॉक्टर जोर साहब, इख्तिसारन, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम, इख्तिसारन मैं आपसे कमेंट लेना चाहता हूँ, लास्ट वाला कमेंट सर, क्योंकि हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपका ड्रामा पे बड़ा काम है, आपने ड्रामा पे काम किया है। अगर हम जी। वेस्टर्न ड्रामा देखें, अगर हम वेस्ट के ड्रामा देखें, तो वो वक्त से, जैसे आपने खुद ही फरमाया, वक्त से कई आगे हैं, जी। वक्त से बिल्कुल बहुत जी आगे जी हैं। जी जी उनके मौजूआत डिफरेंट होते हैं हमारे यहाँ के मौजूआत से। साइंस फिक्शन जी का वो देखिए, वो फल्कियात के बारे में ड्रामाज बनाते हैं, साइंस फिक्शन के हवाले से ड्रामाज बनाते हैं। तो उर्दू में इस हवाले से क्या काम हो रहा है? ठीक है, अगर हम ड्रामे की बात करेंगे तो पास्ट में हमारा ड्रामा क्या था, तो चूंकि ये हमारा मौजू इस वक्त नहीं है कि हमारा ड्रामा क्या था, हमारा ड्रामा इस वक्त क्या है। और आपने इस बीच में ये मसला छेड़ा है कि वेस्ट में ड्रामा कहाँ है, वेस्ट में उनकी डेवलपमेंट कहाँ है, वेस्ट की पॉलिटिशियन कहाँ है, वेस्ट की सोसाइटी कहाँ, हम पीछे हैं, एशिया वाले पीछे हैं, ये मानना पड़ेगा। हम हर फील्ड में, हम तालीम में, एजुकेशन में हम पीछे हैं, तो ये मानना पड़ेगा। अब हम ड्रामा की बात करेंगे तो जहां तक कि बाकी असनफ, अगर हम ड्रामा का कंपेयर वेस्टर्न वर्ल्ड से करेंगे, वो बहुत बड़ा मौजू है। तो हम असर जो है, लिटरेचर जो है हमारा, हिंदी, उर्दू या पंजाबी या बाकी लिटरेचर, बाकी हमारी जो असनाफ है उनके हवाले से अगर हम बात करेंगे और अपना उसका कंपेयर अपने ड्रामा से करेंगे, तो हमारा ड्रामा पीछे नहीं, मुझे नहीं लगता है। एज ए ड्रामा क्रिटिक मैं ये नहीं मानता हूँ कि हमारा ड्रामा पीछे है। क्योंकि रिसेंटली मैंने पढ़ा है कमाल अहमद, वो जो कलकत्ता के हैं, फुंदा डालने वाले, उनका मजमुआ है, मगरिब बंगाल उर्दू एकेडमी से वो शाया हुआ है। तो यहाँ हमारी आंखें जो है, आंखें हमारी खुल जाती है कि जब वो सियासत का मामला छेड़ते हैं ड्रामों में, जब वो समाज के नई नई मौजूआत छेड़ते हैं, जब वो गे सोसाइटी का मसला छेड़ता है, इनके हिजड़ों का मसला छेड़, जब हम परस्ती, जब वो होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं, जब वो बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, जब वो रेगिंग की बात कर रहे हैं, जब वो दूसरी कोख की बात कर रहे हैं, तो यह मासल्यूट करना पड़ता हमारे ड्रामा निगर कमाल अहमद को। इसी तरह जावेद दानिश की मैं बात करूं, उनके मजमूए मेरे पास, वो कनाडा से बेचारा जो है, कनाडा से मुझे वो भेजता है जावेद दानिश। हिजरत के मसाइल जब वो छेड़ता है, नई बस्तियों के मसाइल जब वो छेड़ता है, तो हमें वाकई मानना पड़ेगा कि हमारा ड्रामा बहुत जो है बहुत अच्छी सिमत की तरफ जा रहा है। अब कुछ प्रॉब्लम है हमारे ड्रामा में नहीं, वो तो बहुत सारी जो भी रीजनल लैंग्वेज है या जो छोटी छोटी जबानें हैं, तो उनकी प्रॉब्लम है, उसमें उर्दू भी आता है। पहले एक आजकल के ड्रामे को स्टेज नहीं मिल रहा है, जिसके लिए ड्रामा लिखा जा रहा है। हालांकि टीवी सीरियल की अलग बात है, रेडियो ड्रामा की अलग बात है, मगर जिसके लिए ड्रामा का की जो पहली जो लाजिम मलजूम रिलेशन है वो स्टेज के साथ है, स्टेज नहीं मिल रहा है। उर्दू ड्रामा की सबसे बड़ी बदकिस्मती इस वक्त है रस्मुल खत की प्रॉब्लम। जैसे हम जब बीइंग उर्दू ड्रामा निगार, हम ड्रामा लिखते हैं, जब ड्रामा लिखते हैं उर्दू रस्मुल खत में, फिर जब एक्टर या डायरेक्टर के पास ड्रामा लेके जाते हैं, मे बी एनएसडी, मे बी कुछ श्री राम सेंटर या एक आध बड़े बड़े थिएटर हमें मिल भी रहे हैं उर्दू ड्रामा जैसे, या कोई एकेडमी मिल रही है हमें, कल्चरल एकेडमी या कोई भी एकेडमी, वो हमें ड्रामों का फेस्टिवल है और उसमें उर्दू ड्रामा भी पेश हो। हमारे ड्रामे की ये प्रॉब्लम आती है, जो एक्टर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, उनको उर्दू जो है रस्मुल खत से वाकियत नहीं होती। विद रिजल्ट हमें उर्दू ड्रामा को जो है हिंदी रस्मुल खत में डालना पड़ता है, उसके बाद वो डायलॉग क्या वो एक्टर जो है प्ले करते हैं। इसके बावजूद भी हम जो हिंदी ड्रामा है उनको अपनी जबान मोल्ड करनी पड़ती है। जो उर्दू स्क्रिप्ट नहीं होता है मगर उर्दू ही होता है। फिल्म हमारी वो जो है वो नाम की हिंदी फिल्म होती है मगर होती है वो उर्दू फिल्म, यानी उसके डायलॉग या बाकी चीज जो है उर्दू में होते हैं। एक और बात है कि अब हम अजहर आलम की बात करें, अजहर आलम भी कलकत्ता के बड़े ड्रामा निगार है, उन्होंने रिंग की परछायां लिखा है, एक ड्रामा लिखा है। उसके लिए सोसाइटी चाहिए, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात नहीं है, ऐसी सोसाइटी नहीं है कि जो रिंग की परछायां जैसा ड्रामा यहाँ प्ले किया जाए। यानी ये भी मानना पड़ेगा कि ऑडियंस ऐसा ना हो, हम खुलकर बात करें, जैसे मैंने कहा पहले ही फिक्शन में हम खुलकर बात करते हैं, ड्रामा में भी खुलकर बात करें, तो जो सोसाइटी वहाँ है, जो वहाँ ऑडियंस है, वो किस हद तक बर्दाश्त करेंगे। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि रस्मुल खत, उसके बाद वर्कशॉप बहुत कम होते हैं, होने चाहे ये उर्दू के लिए जो है अलग वो वर्कशॉप होनी चाहिए, या उर्दू के लिए कुछ थिएटर को कुछ बजट वगैरह देना चाहे। इसके अलावा
एक और चीज हमारा कहानी मंचन या नुक्कड़ थिएटर, नसीरुद्दीन शाह, टॉम ऑल्टर जिनका इंतकाल पिछले साल पहले हुआ, नसीरुद्दीन शाह या इरफान वो जो एक्टर, ये लोग जो है उर्दू के लिए उर्दू इरफान खान, वो कहानी मंचन, वो स्टोरी टेलिंग करते थे। ये स्टोरी टेलिंग में भी जितने भी नए नए थिएटर टेक्निक से हमारा ड्रामा उनका साथ दे रहा है, और हमारे ड्रामा निगार जो है, चाहे उन्हें क्लोसेट ड्रामा, चाहे उन्हें स्टेज फराम ना हुआ तो वो किताबों की सूरत में छापते हैं, वो अपने 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 खून से अपने पसीने से थिएटर करते हैं, लोग देखते हैं। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, बरकी साहब आखिर, जी सर, बरकी साहब आखिर पे क्योंकि हम वक्त की किल्लत दामनगीर हैं, हम सारफियत के मुतलिक और जो आलमगीर है जो इस वक्त हमारे अदब पे कार फरमा है, उसको आप किस हैसियत से देखते हैं? इख्तिसारन आप फरमाएंगे और अपनी एक नज़म सामीन के लिए पेश करेंगे, वो महसूस हो जाएंगे आपकी नज़म से। जी सर। मैंने इस सिलसिले में माहौलियात पर बहुत कुछ लिखा है, साइंस के मौजूदात पर बहुत कुछ लिखा है उर्दू में। जी सर, जी सर। और शायद बहुत कम लोगों काम किया है। जी तो सर। ग्लोबल वार्मिंग आज सबसे बड़ा मसला है। बात फरमाएं, आज सबकी दुश्मने क्या है ग्लोबल वार्मिंग, आज सबकी दुश्मने क्या है ग्लोबल वार्मिंग, रोज शब आतिश बदामा है ग्लोबल वार्मिंग, रोज शब आतिश बदामा है ग्लोबल वार्मिंग, रद में है इसकी हमेशा आबो आतिश खाकोबाद, रद में है इसकी हमेशा आबो आतिश खाकोबाद, आतिश सयाद सोजा है ग्लोबल वार्मिंग, आतिश सयाद सोजा है ग्लोबल वार्मिंग, लोग कब्ल वक्त मर गए फातिया के हैं शिकार, लोग कब्ल वक्त मर गए फातिया के हैं शिकार, दास्ताने गम का उलमा है ग्लोबल वार्मिंग, दास्ताने गम का उलमा है ग्लोबल वार्मिंग, आईपीसीसी ने कर दी ये हकीकत बेनकाब, आईपीसीसी ने कर दी ये हकीकत बेनकाब, सबकी बर्बादी का सामा है ग्लोबल वार्मिंग, सबकी बर्बादी का सामा है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस का अखराज है सुहाने रूह, ग्रीन हाउस गैस का अखराज है सुहाने रूह, इनकलाबे नज़्म दौरा है ग्लोबल वार्मिंग, इनकलाबे नज़्म दौरा है ग्लोबल वार्मिंग, बर्फ के तूदे पिघलते जा रहे हैं मुस्तकिल, बर्फ के तूदे पिघलते जा रहे हैं मुस्तकिल, एक हलाकत खेज तूफा है ग्लोबल वार्मिंग, एक हलाकत खेज तूफा है ग्लोबल वार्मिंग, एक तूफान हवादिस आ रहा है बार बार, एक तूफान हवादिस आ रहा है बार बार, शामत आमाल इंसा है ग्लोबल वार्मिंग, शामत आमाल इंसा है ग्लोबल वार्मिंग, है परेशान हाल हर जीरू इससे मुस्तकिल, दुश्मन इंसान और हैवा है ग्लोबल वार्मिंग, है दिगरगू आजकल हर वक्त मौसम का मिजाज, है दिगरगू आजकल हर वक्त मौसम का मिजाज, हर घड़ी खतरे जा है ग्लोबल वार्मिंग, है खजा बीदा दुरुस्ता मुजमैन है बदबुल, गलत फसलें बहारा है ग्लोबल वार्मिंग, हर कोई जिसके असर से खा रहा है तो चिताब, एक ऐसी आफत जा है ग्लोबल वार्मिंग, इसका पैमाने करोड़ों से होगा सदबाब, इज्तिमाई ऐसा नुक्सा है ग्लोबल वार्मिंग, है जरूरत आलमी तहरीक की इसके लिए, सोजो सादे बारे है ग्लोबल वार्मिंग, है नासिर में तवाज़ुन बाइस नज़्म जहां, सादे फितरत पर गदलखा है ग्लोबल वार्मिंग, जाए तो जाए कहाँ बशर अहमद अली, जिस तरफ देखो नुमाया है ग्लोबल वार्मिंग। बहुत अल्लाह करे जोर करम और ज्यादा बेहतरीन मुमताज हमारी तरफ से मुबारकबाद। इस मौजूद पर इतना लिखा है कि पूरी किताब हो सकती है। जी सर, जी सर, हमारे साथ कम लोगों ये सब पढ़ जी सर, हमारे साथ मोहतरम प्रितपाल सिंह बेताब साहब जुड़े हुए हैं। मोहतरम प्रितपाल सिंह बेताब साहब, क्योंकि आप इस वक्त असाजुल असातिज़ा शायर हैं, आपका पैगाम क्या है जो हमारे इस वक्त नौमशिक लिखने वाले हैं, नौमौलूद शायर हैं, उनके लिए आपकी क्या नसीहत है, क्या पैगाम है, और आपकी एक गजल, आपका एक कलाम इनायत उनके लिए, हमारी नाज़रीन के लिए। देखिए, जहां तक नए लोगों का ताल्लुक है, मैं तो कहा करता हूँ, शायद आपके प्रोग्राम में भी पहले भी कहा था, बिल्कुल बिल्कुल, जो उर्दू का सिलसिला है शायरी का, हमारे नए शायरों को असातिज़ा का कलाम जरूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, असातिज़ा जो हैं, मोमिन, ज़ौक, दाल, आतिश, नासिर, इन लोगों का कलाम पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, कि इनके कलाम को पढ़ने से
शायरी के मामलात, शायरी की मामला बंदी, शायरी में रूज, शायरी में मामला बंदी समझ में आती है। किसी उस्ताद से अब इस्लाह लेने के जमाने नहीं रहे, अब उस्तादी शागिर्दी का जमाना तो रहा नहीं। इसलिए मैं नए लोगों से यही दरख्वास्त करता हूं, उनको राय देता हूं कि असातिज़ा का कलाम पढ़ना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए और कम से कम लिखना चाहिए। बिल्कुल सर, आपका मतलब में मेरा यही पैगाम है कि नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए जी सर, और कम से कम लिखना चाहिए। जी सर, आपका एक कलाम इनायत, आप इनायत मैं फरमाइए। चलते चलते जी आपके हुक्म के मुताबिक, वैसे मैं आज जिस तरह से आपने मुझसे बात की थी, मैंने गजल या नज्म सुनाने के बारे में कोई तैयारी नहीं की थी, सोचा नहीं था, लेकिन अब आपका हुक्म है तो मैं जो सामने आ रही है गजल, जो गजल सामने आ रही है वो आपको सुना देता हूँ। जी 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 इनायत। 400 फैला हुआ कारे जहां रहने दिया, 400 फैला हुआ कारे जहां रहने दिया, रुक गए हम और हर शय को रवां रहने दिया। 400 फैला हुआ कारे जहां रहने दिया, रुक गए हम और हर शय को रवां रहने दिया। तो शेर देखिए, इनायत। अपने गुंबद में कहां से आएगी ताजा हवा, अपने गुंबद में कहां से आएगी ताजा हवा, एक दरीचा भी खुला हमने कहां रहने दिया। वाह, अपने गुंबद में कहां से आएगी ताजा हवा, एक दरीचा भी खुला हमने कहां रहने दिया। बालों पर कायम थे साबित हिम्मत परवाज थी। शेर देखिए, बालों पर कायम थे साबित हिम्मत परवाज थी, कुछ जमीन आस आ गई थी आसमां रहने दिया। वाह, जी बालों पर कायम थे साबित हिम्मत परवाज थी, कुछ जमीन आस आ गई बस आसमां रहने दिया। तो शेर देखिए, इनायत। अपनी खातिर हमने एक नन्हा जजीरा चुन लिया, अपनी खातिर हमने एक नन्हा जजीरा चुन लिया और बहरे बेकरां को बेकरां रहने दिया। क्या कहने से अपनी खातिर हमने एक नन्हा जजीरा चुन लिया और बहरे बेकरां को बेकरां रहने दिया। तो शेर देखिए, अपनी किस्मत के लिए वो एक सितारा था बहुत, अपनी किस्मत के लिए वो एक सितारा था बहुत, दस्तरस में था मगर कुल आसमां रहने दिया। अपनी किस्मत के लिए वो एक सितारा था बहुत, दस्तरस में था मगर कुल आसमां रहने दिया। तो मक्ता देखिए, कुछ मिजाज अपना ही था बेताब उन सब से जुदा, कुछ मिजाज अपना ही था बेताब उन सब से जुदा, बस अकेले चल दिए हम कारवां रहने दिया। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। मिजाज अपना ही था बेताब उन सब से जुदा, बस अकेले चल दिए हम कारवां रहने दिया। 400 फैला हुआ कारे जहां रहने दिया, रुक गए हम और हर शय को रवां रहने। बेहतरीन बेहतरीन दिल की गहराई उससे मुबारकबाद आपको, चूंकि आपकी पहचान ही आप असाजुल असatidza शायर हैं। ये था आज का प्रोग्राम,
یہ تھا آج کا پروگرام. آج کا ہمارا موضوع بحث جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا معاصر ادبی رویے تھے. اس پر ہمارے ساتھ جو خاص 3 مہمان جڑے ہوئے تھے آپ تھے ڈاکٹر محی الدین زور کشمیری صاحب, آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہمارے ساتھ محترم پرتپال سنگھ بیتاب صاحب جڑے ہوئے تھے اور احمد علی برقی صاحب جڑے تھے. ہم تینوں مہمانوں کے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے چینل کو بھی چند لمحات نوازے. انشاءاللہ مباحثے اور بھی ہوتے رہیں گے, کچھ اور لوگوں کو ہم انشاءاللہ آپ کے روبرو کروائیں گے. تب تک کے لیے مہمانوں سے بھی رخصت چاہتے ہیں اور آپ ناظرین سے بھی رخصت چاہتے ہیں.